Good afternoon. Now today we shall discuss about the neoprene. GRM, rubber. GRM rubber. So actually isoprene is the constituent of the natural rubber. But after isolation of isoprene in laboratory from latex of the rubber, it was thought that other substituted butadiene can also be used to get polymer of rubber like. So this product polymer, that is the neoprene, it was prepared in USA and it is very useful rubber. So actually how we can prepare neoprene? So neoprene, it is polychloro polychlorobutadiene. Polychlorobutadiene. Polychlorobutadiene, it means what is the monomer? Monomer is 2 chloro 1 3 butadiene. This is the CH2 C Cl CH double bond CH2. This is the 2 1 2 3 4. This is the numbering of the carbon. So here Cl group is attached to the carbon at position 2. So therefore 2 chloro 1 3 butadiene. But means 4 carbon और डाई मीन्स 2 इन माने डबल बॉन्ड. तो 2 डबल बॉन्ड हैं. CH2 यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, ये क्लोरो है. So this is the monomer. You can write here 2 chloro 1 3 butadiene. Now it polymerizes. Yes. Polymerization of 2 chloro 1 3 butadiene takes place through free radical mechanism. Means first of all, in first step, free radical is formed, and that free radical
add to the another monomer and get dimer, trimer, tetramer, pentamer, hexamer, and then we say polymer. So how it can polymerize? Just see, I take N molecule of this monomer. It polymerizes through free radical, free radical mechanism. Free radical mechanism. So what polymer is for neoprene? Neoprene is for. Here CH2 C Cl double bond CH CH2 this. This is the polymer. This bond is break. So half of the bond here and half of the bond goes to here. ये यहाँ से टूटा इधर गया इधर गया. ये बॉन्ड यहाँ से टूट करके यहाँ आया डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बन गया CH2 आधा जो बचा इधर दिखा तो यह मॉलिक्यूल जुड़ गए आपस में एडिशन पॉलीमराइजेशन कहा जाता है. जितने भी ये डाइन में पॉलीमराइजेशन होगा ये सभी पॉलीमराइजेशन होता है आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन. इसके पहले मैंने आपको बुना यस पढ़ाया था. तो बुना यस में क्या है? कोपॉलीमराइजेशन. कोपॉलीमर बना बुना यस इज कोपॉलीमर. 2-methyl butadiene polymerizes with styrene. So styrene is another monomer and 2-methyl butadiene is another monomer. But the polymerization mode of polymerization is addition. Addition. So addition polymerization ये कोपॉलीमराइजेशन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है. दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मोनोमर. कौन कौन से मोनोमर हैं? तो डबल बॉन्ड है तो ये मोनोमर एडिशन पॉलीमराइजेशन. तो एडिशन आफ्टर एडिशन पॉलीमराइजेशन वी गेट दिस पॉलीमर. दिस इज द नियोप्रीन. नियोप्रीन. This is the neoprene. So this neoprene is important in many respects. So we can say properties of the neoprene. Neoprene is rubber. So most of the property is just the property of the rubber, but neoprene is superior than natural rubber. So number 8, neoprene is superior than natural rubber. Natural rubber. What is natural rubber? Polymeric form of isoprene. Isoprene means 2-methyl butadiene. Here, what is neoprene? Neoprene is polymeric product of 2-chloro-1,3-butadiene. This is the difference. So in the property,
Most of the property is just like natural rubber, but neoprene is superior than natural rubber. Effect of second, it is resistant to vegetable and oil and mineral oil. In compared to the natural rubber, neoprene is more resistant to vegetable oil and the mineral oil. As I told you, there is much more effect of the temperature on natural rubber, but this neoprene, we can say neoprene, neoprene is superior to natural rubber in with respect to high temperature. High temperature. Neoprene, it is soluble in polar solvent. You can write here for neoprene, neoprene is soluble in many solvent, in polar solvent, in polar solvent. Why this neoprene is soluble in polar solvent? Non-polar solvent में नहीं होता. In polar solvent, as we know that polar substance dissolves in polar solvent. वैसे भी हम जानते हैं लाइट dissolves लाइट. सॉल्बिलिटी का एक सिद्धांत है लाइट dissolves लाइट. कोवलेंट कंपाउंड डिजॉल्व होते हैं नॉन पोलर में या कोवलेंट सॉल्वेंट में. आयनिक सल्यूट है तो आयनिक में डिजॉल्व होगा या ये आप कह सकते हैं पोलर में डिजॉल्व होगा. तो जितने भी पोलर टाइप के पदार्थ होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं. नाउ क्वेश्चन इज व्हाई नियोप्रीन इज पोलर. नियोप्रीन पोलर है तभी पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा. तो पोलर क्यों है? पोलर इसलिए है कि आप देखिए ये आपका CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 like this. Yes, here हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है
Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर है तो ये कार्बन Cl का जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा Cl की तरफ ज्यादा, तो इस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज पैदा होगा, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज पैदा होगा। तो इन दिस वे polarity has been developed. So the polarity has been developed only on account of the presence. अगर कहीं Cl की जगह CH3 होता तो ये कंपाउंड, ये प्रोडक्ट पॉलीमर जो है ये नॉन पोलर होता, लेकिन यहाँ पर ये Cl है तो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप के प्रेजेंस के कारण ये क्या है, ये पोलर है। और अगर पोलर है तो निश्चित तौर पर ये किस सॉल्वेंट में घुलेगा, आपको बता दिया पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। आपने देखा कि नेचुरल रबर का हमने वल्कनाइजेशन किया। वल्कनाइजेशन है क्या, ये हमने बताया आपको। वल्कनाइजेशन मीन्स टू polymeric chain are cross-linked through sulfur. Simple understanding of the vulcanization. Whenever any polymer is heated with the sulfur, sulfur form a cross-link between two chains of the polymer. Suppose if I say this is the one chain, this is the one chain of the polymer, and second chain is this one, like this. Like this. So when we mix sulfur, what will happen? This bond will form cross-link and here sulfur like this. अब ये दोनों जो चेन है पॉलीमर का अलग अलग दोनों चेन है, क्रॉस लिंकिंग नहीं है, तो ये बहुत ही यूजफुल नहीं है। जैसे रबर को हम खींचते हैं तो ये खींच गया, छोड़ते हैं तो फिर ये अपने स्थान पे आ जाए, इसका माने कोई इसका फोर्स है जो कि पीछे खींच रहा है। तो इस प्रकार से वल्कनाइज, तो नियोप्रीन, पांचवा नियोप्रीन रबर कैन बी vulcanized like natural rubber, like natural rubber. So neoprene can be vulcanized. We shall discuss about another type of the rubber, elastomer you can say, that is the Bunion. So this neoprene, we can say neoprene, it is inferior to Bunion. This Bunion, I shall give you the preparation or you can say polymerization. Bunion जो है इसमें दो मोनोमर है, ये भी कोपॉलीमर है। एक है ब्यूटाडाइन और एक है
नाइट्राइल। तो नाइट्राइल और ब्यूटाडाइन, ब्यूटाडाइन 75%, नाइट्राइल 25% मिला करके फिर इसको जो है पॉलीमराइज करते हैं इमल्सन में, इमल्सन बना करके। तो ये एक हमको नया प्रोडक्ट, रबर लाइक प्रोडक्ट प्राप्त होता है, पॉलीमर प्राप्त होता है, जिसको बुनायन कहते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे। तो कहता है कि ये जो नियोप्रीन है, इस नियोप्रीन से बुनायन सुपीरियर है, ये बात इसको करना है। तो ऑल दीज आर properties of the neoprene. Now come to the usage of neoprene. Usage of neoprene. Almost all rubbers have similar type of the application, but for some difference, and application also depends upon the cost and durability. So almost you will find that the applications are almost, केबल, बिजली का तार आता है, मोटी जो केबल बनती है उसके ऊपर एक कोटिंग होती है। ऑलमोस्ट ऑल रबर्स आर इंसुलेटर। तो ये जो नियोप्रीन है, इस नियोप्रीन रबर का इस्तेमाल करते हैं हम किसमें? प्रिपेयरिंग द केबल। तो यूजेज यू कैन से, यूजेज नंबर 1 टू प्रिपेयर केबल by coating over wire। तार के ऊपर जो है आप कोट चढ़ा दीजिए। तो ये आप देखते ही होंगे कि कनेक्शन लेते हैं बिजली का, तो केबल है, अंदर तार है एल्युमिनियम का या कॉपर का, जैसा भी है। ऑलमोस्ट घरेलू उपयोग में हम एल्युमिनियम के तार की केबल का इस्तेमाल करते हैं। कॉस्ट थोड़ा कम पड़ती है, कॉपर की कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो ये इस्तेमाल घरेलू उपयोग में नहीं करते। ये जो नियोप्रीन है, ये सुसोल, इट इज यूज्ड इन सुसोल। थर्ड, टू प्रिपेयर होज पाइप, खोज पाइप के बनाने में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। होज पाइप एंड ग्लव्स, यू कैन से ग्लव्स। ग्लव्स के इस्तेमाल में भी हम इसको करते हैं। सॉरी ग्लोव्स, GES, ग्लोव्स। आप बहुत सारे ऐसी करोसिव लिक्विड और गैस होती हैं जिनको हम एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, जैसे एलपीजी है।
तो एलपीजी एक करोसिव गैस है, करोजन पैदा करने वाली गैस है, इसलिए इसको हम कहते हैं करोसिव। तो करोजन पैदा करने वाली गैस पाइप बनाने में हम नियोप्रीन का प्रयोग करते हैं। चौथा कह सकते हैं इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर पाइप, रबर पाइप carrying corrosive gases, तो करोसिव गैस को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जो रबर पाइप बनाते हैं वो रबर पाइप हमारी नियोप्रीन की होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा एक कन्वेयर बेल्ट होती है। कन्वेयर बेल्ट पट्टा जिसे आप कहते हो, तो एक तो अगर कोई मशीन है, एक मशीन को एक पुली से दूसरे पुली में शाफ्ट में जोड़ देते हैं तो वो भी चलता है, इंजन चलता है, इंजन से जोड़ दी, तो एक इंजन से एक पुली है उसको दूसरे शाफ्ट में डाल करके दूसरे पुली में डाल दें, वहां भी चलने लगे। एक तो यह होता पट्टा जिसे एक कन्वेयर बेल्ट ऐसा होता है कि कोई सामान यहाँ है, मशीन पे लगा हुआ है पट्टा, हम सामान को रख दिए तो वो ले आकर के दूर, हमको जाना नहीं पड़ेगा, वो पट्टे पर रख दिया तो वो चला जाएगा। जैसे कि कोई बैग है आप रख दिया कन्वेयर बेल्ट पे, वो बेल्ट मूव कर रही है और सामान जा करके वहां पर गिर जाएगा, तो कन्वेयर बेल्ट। तो कहता है कि ये जो आपका नियोप्रीन है, इट इज यूज्ड बाय नियोप्रीन is used to prepare conveyor belt. So in this way you can use neoprene, you can prepare, and what are the properties, different properties of the neoprene and where neoprene can be used. तो मैं समझता हूँ कि एक ही और इस्तेमाल नियोप्रीन का करते हैं, सस्ता रबर है, फैब्रिकेशन के लिए। फैब्रिक होता है, बहुत से क्लास बनते हैं जिसके अंदर की हम नियोप्रीन का इम्बीड करते हैं, जिसको कि मिलाते हैं धागे इसके वजह से, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो फैब्रिक के प्रिपरेशन में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। गैस्किट का नाम सुना है, गैस्किट के बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं। So these are all about the neoprene. Means neoprene is the polymer of 2-chlorobutadiene. 2-chlorobutadiene polymerizes to give a polymer called neoprene. इसका पॉलीमराइजेशन होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, नेचुरल रबर से सुपीरियर है, हाई टेम्परेचर पर ये
एग्जिस्ट कर सकता है, इसकी प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होता। इसके अलावा नेचुरल रबर पे वेजिटेबल ऑयल और मिनरल ऑयल का इफेक्ट होता है, इसके ऊपर नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि नियोप्रीन इज रेजिस्टेंट टू vegetable oil and mineral oil. So this is all about the neoprene. Thank you very much.